Bismillah Rahman Rahim. So we're talking about data types in our JavaScript. Okay, we said basically there are three types. We have the primitive are which are not objects. Like I said, we have the number in it. We got the string, and we got the maybe it's the last I'll admit today, but not next time. Everybody open up the cameras or you will be removed. Number, strings, and what else I said? It is in it. Okay. Anybody tell me? हमने पढ़ा ना Boolean. परसों boolean. Boolean. Very good. There is also the big int, which was in 2020 actually, introduced in it. And in 2015 we had one thing. What is that called? Symbol. It was in 2015 introduced. Then we have the trivial. The trivial are again the primitive. Okay, they are again primitive, in which we have two. One is the null and one is undefined. Okay, and the last type, basically there are only two types, either they are primitive or they are object. Okay, object has only one thing, that is object itself, any one object. But remember one thing, all of these guys which are primitive has what is called as the wrapper classes. So you have the wrapper objects or wrapper classes which are objects which can wrap them and make them an object. But right now if you use them as without being object, so they will be called as the primitive data types. But later on we can use also the wrapper classes to wrap them up and make them an object. Null और unchanged undefined है, इन दोनों का कोई wrapper class नहीं है, बाकी सब का wrapper class है. और बाकी जितनी भी चीज़ें आपके पास होंगी वो सारे के सारे object होंगे. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि JavaScript is not purely object oriented. So it's not purely object oriented. It is strictly object oriented. Strictly object oriented. Not, I mean to say purely, because there are primitive data types. So when you have primitive data types, that means everything is not object, right? But there are some languages where everything is object. Now leave that. In the JavaScript has two types. It is two things in it. One is dynamically typed. Okay. And second thing is it is what we call as a weakly typed, right? We call them as it's a dynamically typed and it's a weakly typed. It's weakly typed language. So what does it mean? Let me go for this into the VS Code, and I am writing here, for example, some variable. Say var, even though I don't need to call it a var. So right now I call it a var a, for example. And I am saying var a is equal to 90. Now if I say console.log and I want to say what is the type of a. Okay, I can say double quotes a val type of a type, in fact it's a data type. Okay, I can say data type of a is equal to, then I concatenate it with the type of a. So we have a type of, and I say a. Okay, now if I give it a go in my browser, so let me go to the index. हमारे पास कौन था? Let me create one more file here, and let me call it what is your in the miner? I call it miner.html, and in the miner.html I will have the emmet. I put up the things and then I will link it. So I will using the script tag. Okay, script : source. And there I'm having in the JavaScript folder, so I will say in the JavaScript folder there is a script.js. Press double enter for first do what you have, say script source, then just press J. It will give you the option कि कौन सा folder है, फिर उसमें कौन सी file है, just press enter. It will give you, so let's link it with that. Now I will just dispose it off and go live here. I will go live here, and if you don't have a live server, you have to have the extension of live server. So if you don't know what is that,
you have to go to the extensions, okay, and what are the extensions here? This is too big. Extensions, you just find on the extensions here, and actually इस monitor में ना बड़ा font बड़ा मोटा है. यहाँ पे आप live server लिखेंगे, live server. यहाँ पे आप extension find करेंगे, यहाँ पे live server लिखेंगे, और जब live server आएगा उसको install करेंगे आप. तो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो फिर आपको क्या होगा, उससे आपका ये चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे जो गो लाइव नीचे आ जाता है वो आ जाएगा. ठीक है, जो गो लाइव आता है वो आ जाएगा वहाँ पे. अभी फ़िलहाल जो ये पेज है, मैं इसको लेता हूँ इसमें यहाँ पे हमारा ये पेज आ गया, जो ये miner.html है ये चल गया यहाँ पे. ठीक है ना. अब मैं इसको मैक्सिमाइज करूँगा सबको. नाउ जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे वो वहाँ पे दिखेगा. अब जो ये हमारा ये है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पे और खोलूँ, और उसके बाद मैं कंसोल खोलूँगा, यहाँ पे दिखा रहा है डेटा टाइप ऑफ ए इज़ इन नंबर. तो इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर. मैं वापस जाऊँगा अपनी फाइल्स पे, यहाँ पे ये फाइल्स का आइकन है, और वहाँ पे मैं स्क्रिप्ट पे वापस जाऊँगा. लेकिन अब मैं कहूँगा ए इज़ इक्वल से फॉर एग्जाम्पल इन डबल कोट्स जुनैद. आई गो हियर एंड आई से शिफ्ट ऑप्शन डाउन एरो. विंडोज़ में शायद शिफ्ट कुछ होगा, ये देखना शिफ्ट ऑल डाउन होगा. यहाँ मैक में मुझे आता है शिफ्ट ऑप्शन डाउन एरो, इससे कॉपी पेस्ट हो जाता है. देन आई विल से ऑप्शन एंड डाउन एरो, ये नीचे चले जाएगा. अब मैं यहाँ पे देखूँगा ए का डेटा टाइप क्या है. पहले तो इसका इंटीजर था, नंबर था, और अब जो नंबर, क्योंकि नंबर इज़ एवरीथिंग, इन फ्लोटिंग पॉइंट हो या कुछ भी हो वो सारा नंबर लेता है. ठीक है ना. और अब इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग बन गया, सेम ए का डेटा टाइप स्ट्रिंग बन गया. सो इट्स कॉल्ड डायनेमिकली टाइप्ड. आपको यहाँ पे टाइप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना, इसने खुद टाइप किया. अगर मैं अब इसमें काम क्या करूँगा, मैं काम I just copy paste these two guys, control option and down arrow, and I am putting here, say for example true. I am putting in the A true, and I see it in the browser. Now it is boolean. See here, now the same A has become boolean, so we call it, it's a dynamically typed. ये possible नहीं है दूसरे लैंग्वेजेस में, क्योंकि जो कि स्टैटिकली टाइप्ड होती हैं. स्टैटिकली टाइप्ड में क्या होता है कि आपका आपने डेटा टाइप रखा, ना यू कांट चेंज इट, देन यू कैन हैव टू टाइप कास्ट, यू कैन टाइप कास्ट इन द मीन टाइम. लेकिन यहाँ पे आप इसको कुछ भी कर सकते हो. दूसरा किस्सा ये है कि ये वीकली टाइप्ड है. वीकली टाइप में क्या होता है कि आपका जो कन्वर्शन है वो खुद हो जाता है. ये जैसे फर्ज कीजिए, अभी मैं इसको फिलहाल बंद करूँगा यहाँ पे, कमांड एंड फॉरवर्ड स्लैश, और आप में कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, जो माइक्रोसॉफ्ट ना विंडोज़ वाले हैं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश में वो सबको कमेंट आउट कर देगा. कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश से आप कमेंट कर सकते हो जो आपने सेलेक्ट किया. मैं क्या करूँगा काम, मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे रखा, वैर ए इक्वल्स टू से फॉर एग्जाम्पल 23. ओके. अब मैं कह रहा हूँ वैर बी इक्वल्स टू ए जो है इसके साथ आप प्लस करो. देखिए अगर मैं इसके साथ प्लस करूँगा 1, ठीक है ना. Then I say for example this line of code, I just copy this, command C and command V. Then I see here console log, I will say data type of A जो है मैं कहूँगा यहाँ पे data type of, फिर concatenate it with the A variable. In fact I want B. Then I concatenate it with the is equals. Then I'm saying equals. ओके. ये डेटा टाइप ऑफ आएगा ऐसे लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल आ जाएगा जहाँ तक डबल कोट्स है. फिर उसके साथ कॉन्कैटनेट होगा बी का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये कोट्स के बाहर रखा बी. जब बी कोट्स के बाहर रखा तो ये इसका वैल्यू देगा, यानी कि जो है वैल्यू. ठीक है ना. उसके बाद जो मैंने किया काम, 1 सेकेंड, अस्सलाम हेलो, हाँ जी कौन. मैं अभी भी क्लास में हूँ, थोड़ी देर बाद फ़ोन करना, ठीक है, हाफ एन आवर के बाद. सो बी प्लस फिर इक्वल टू क्या करना है आपको, मैंने कि इसका मतलब है कि डेटा टाइप ऑफ बी का वैल्यू आ जाएगा, बी नहीं आएगा एज अ लिटरल. ये होता है लिटरल, लिटरल मीन्स टेकन एज अ कॉन्स्टेंट, ऐसे ही आ जाएगा. लेकिन बी एज ए बी नहीं आएगा, बल्कि उसका वैल्यू आ जाएगा. और फिर इज इक्वल, और यहाँ पे डेटा टाइप ऑफ बी कहेंगे, उसका डेटा टाइप भी आ जाएगा और इसका वैल्यू भी आ जाएगा. यानी कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये कहना डेटा टाइप ऑफ 24 इज नंबर.
क्योंकि इसने क्या किया 23 था ए का वैल्यू, उसको ऐड किया। लेकिन अगर मैं ये ए रखूंगा इन अ सिंगल और डबल कोट्स, आई एम पुटिंग दिस वन इन माई सिंगल और डबल कोट। नाउ व्हाट इज दिस वन? इज दिस अ नंबर? फिजिक्स गाइज में से मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगा, लेकिन IT गाइज दे शुड बी एबल टू आंसर मी। String. It will be a string. So what will be answer firstly? What will come here in place of B, the value? Will it be 24? IT गाइज तो बहुत वीक है, फिर इसका मतलब है IT वाले तो बोलने चाहिए। IT ये तो बिल्कुल नर्सरी का चीज़ है कंप्यूटर साइंस का। वो सर 24 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? शाबाश जेनिस। 23 आएगा, +1 आएगा स्ट्रिंग। सो टोटल क्या आएगा हमारे पास आंसर? 20 डेटा टाइप You are ऑफ right. 23। You are exactly right. It will be 231. It will be 231 and data type is string. Because what it does is it concatenates. Now it doesn't add. अभी ऐड नहीं करेगा, अब एक कॉन्कैटनेट करेगा। कॉन्कैटनेट का मतलब होता है कि मेरे पास ये फ़ोन है, इसको मैं कॉन्कैटनेट करूंगा। फॉर एग्जांपल दूसरा फ़ोन, मैंने ये दूसरा फ़ोन इसके साथ लगाया, ऐसे ये हो गया कॉन्कैटनेट। प्लस हो गया कि मैंने प्लस करना है, ये अलग, ये फ़ोन नहीं रहेगा, कुछ और बनेगा। ये 23 नहीं रहा, मानो ये 23 था और ये 1 है। अब ये 23 अगर मैं इसको +1 करूँगा 24 कुछ और बनेगा। लेकिन स्ट्रिंग कॉन्कैटनेट का मतलब है 23 ऐसे ही है और यहाँ से 1 इसके साथ लगाओ, अटैच करो। अरे यार ठीक है, फ़ोन पे फ़ोन बज रहे हैं। ओके, गेटिंग माई पॉइंट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, सो sir. वो तब पॉसिबल है जब ये ए स्ट्रिंग है। वो तब पॉसिबल है जब ए क्या है? स्ट्रिंग। आपको समझ आ रही है? लेकिन ए तो मेरी स्ट्रिंग है नहीं, ए तो मेरा इंटीजर नंबर है, इट्स एन इंटीजर नंबर, राइट? सो व्हाट विल हैपन हियर इज इट इज कॉल्ड coercion. The A will be converted to string for this operation, typecasted implicitly. That's called implicit typecasting. ठीक है ना? You getting my point? So this is what is called as weakly typed. वीकली टाइप्ड में क्या होता है कि आपकी जो टाइप कन्वर्शन है, यानी आपके जो ए है वो बिना टाइप कास्ट के आपने इसको नंबर बना दिया, है ना? यू मेक इट अ नंबर। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी बॉय सो yeah, actually I'm in a live class right now in a college. Can I call you in after 5-10 minutes? Yeah. Okay, thank you. You getting what I'm saying? So this A you haven't type, अगर कोई और लैंग्वेज होती ना तो आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ता, तो यहाँ करना नहीं पड़ा। ये वीक, क्योंकि ये वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है, यानी कि इसमें ऑटोमेटिक ये चीज़ें कन्वर्शन होती हैं, कोर्शंस हो जाती हैं। सो इट अलाउज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन। जबकि मिसमैच्ड दो डेटा टाइप्स होंगे, इट इम्प्लिसिटली टाइप कन्वर्शन खुद कर जाता है। ठीक है जी, हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि एक होता है वैर, एक होता है लेट। हम वेरिएबल्स को दो तरीके से डिक्लेयर करते हैं, एक होता है वैर, एक होता है लेट। अब इनमें क्या फ़र्क है? वैर और लेट में ये फ़र्क है, पहले आप लिखें इसमें कि जो वैर है, अगर पहले ये डिफ़ॉल्ट है, यानी कि अगर आपने कोई वेरिएबल लिखा a इज इक्वल 24, इसका ऑटोमेटिक इट इज़ वैर। इफ़ यू डोंट राइट इट और यू राइट इट, इट इज़ वैर। नंबर सेकंड जो वैर है, यू कैन री डिक्लेयर। ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, यू कैन री डिक्लेयर इट। मैं अभी दिखाऊंगा क्या वो क्या होता है। इट इज़ ब्लॉक वेरिएबल एज वेल एज ग्लोबल। लेकिन जो आपका लेट है वो आपका जनाब सिर्फ ब्लॉक वेरिएबल है, वो ग्लोबल नहीं है। वो क्या होता है अभी समझाऊंगा मैं कोड में, ठीक है? ऐसे समझ नहीं आता पूरे। और दूसरी बात है कि यू कैन नॉट रीडिक्लेयर, ठीक है? ये ज़रूरी है ये चीज़।
तो इसलिए हम अक्सर अपना लेट से ही करते हैं चीज़ें। चलिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी वेरिएबल ए है, मैंने 23 इसमें रखा, मैं इसको बंद ही कर दूंगा फिलहाल। अब वेरिएबल ए है, इसमें 23 है, ठीक है, ठीक हो गया। अब अगर मैं कहूँगा, पहले मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, वो तो मसला ही नहीं, मैं इसको ए में 98 डाला, इट डजंट मैटर, ये तो हो सकता है किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि ए का वैल्यू 23 था। नाउ यू कैन अपडेट इट बिकॉज ये वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर एक कॉन्स्टेंट होता तो यू कांट चेंज इट, तो पहली बात वो। दूसरी बात यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता कॉन्स्टेंट CONST, नाउ यू कैन नॉट चेंज दिस ए टू 98, so it would be a problem because constant can't be changed. Now where can be changed, but I am redeclaring it. I am saying again where a is equal, say for example 87. Now you see I am redeclaring the a, it doesn't have any issues, there is no error whatsoever. ये जो get wet का ये है, वो दूसरा है, वो लाइव सर्वर का। यानी कि अगर मैं यहाँ पे console.log करूँगा ना अपना, command C command V, there is no issues, data type of a is equal to a, तो यहाँ पे आपको ये आराम से इसका वैल्यू देगा, डेटा टाइप ऑफ 87 इज नंबर। अब इसने a का जो लास्ट वैल्यू है वो लिया, बट यू रीडिक्लेयर डिट, आपने नया इसको बनाया, इट इज़ अलाउड। लेकिन अगर मैंने वैर को लेट से किया होता, किससे किया होता, लेट से, मैंने लेट a किया होता, लेट से भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट a इज इक्वल 23, लेकिन जब मैं यहाँ पे फिर रीडिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे इसको, सो ये बता रहे हैं भाई साहब a हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, आप इसको ना रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रीडिक्लेयर इट, डू यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये लेट था। चाहे आप कहोगे कि नहीं ये मतलब मैं वैर से अगर मैं लेट भी करूँगा, इट वोंट अलाउ यू टू रीडिक्लेयर इट, क्योंकि ए ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। दिस इज गुड फॉर अस, वाई, बिकॉज समटाइम्स आपने एक वेरिएबल बनाया है, अब आप भूल गए, प्रोग्राम बहुत लंबा चौड़ा है, आप भूल गए, और आपने नीचे वही उसी वेरिएबल का दूसरा डिक्लेयर किया। अगर वैर होगा तो वो आपको करने देगा, लेकिन लेट बोलेगा क्या चाच कोरमुती है री कतामत इमा कर दे मी फिर किहिन, डू यू अंडरस्टैंड, सो इट इज गुड फॉर अस टू दैट लेट इज नॉट अलाउइंग, बट इन सम केसेस यू लेट इट अलाउ, यू वांट कि रीडिक्लेयर गइस गाछुन, देयर आर सम केस यूज केसेस। दूसरा चीज मैंने ये कहा आपसे कि जो वेरिएबल ए है इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल एज वेल एज ब्लॉक वेरिएबल, लेकिन आपका लेट जो है इट इज अ ब्लॉक वेरिएबल, इट विल बी एक्सेसिबल विद इन द ब्लॉक ओनली। वो क्या होता है, वो ये होता है कि फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे, मैं पहले इसको बंद ही कर लेता हूँ सारा कमांड दिस थिंग, मैंने यहाँ पे ना एक ब्लॉक बना दिया ए, मैंने इसमें कहा ए इज इक्वल, मैंने एक ब्लॉक बनाया, ये मैंने ब्लॉक बनाया, मैंने कहा यहाँ पे वैर ए इक्वल्स टू 98, ओके, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दिस command C outside the block, command V, and I am trying to access it outside the block. So data type of A is the type of A, whatever it is. Now I give it a go, it doesn't have any issues, it's telling me data type of 98 is number, so that means A is available outside the block. A is available inside block also, A is available outside block also. Do you understand why? Because जो variable A where से जो आप करते हैं वो आपका ब्लॉक लेवल भी है और ग्लोबल भी है, यानी कि ये ग्लोबल है तो ये कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, ब्लॉक के बाहर भी। लेकिन अगर ये लेट होता, लेट इज ऑन ए ब्लॉक वेरिएबल, ये सिर्फ इस ब्लॉक में इसकी एक्सेस है, इस कमरे में, इस कमरे से बाहर इसकी एक्सेस नहीं है ना। इफ आई गो टू गो, ये बताएगा भाई ये क्या है, कौन है ये, ए कौन है, व्हाट इज ए, इट डजंट नो अबाउट ए, क्योंकि आप जो ए को प्रिंट कर रहे हो ब्लॉक से बाहर कर रहे हो, बात समझ आई। लेकिन अगर आपने ए को प्रिंट किया होता विद इन द किया होता, हम कहेंगे यहाँ पे विद इन, यहाँ पे मैं लिखूंगा विद इन ब्लॉक, अगर विद इन ब्लॉक आपने ये किया होता ना, अगर आपने विद इन ब्लॉक एक्सेस किया होता इसको, सो ये आपको आराम से एक्सेस होगा विद इन ब्लॉक हो रहा है लेकिन बाहर से नहीं हो रहा है। हाँ I'm in a class, huh? Hello. Okay. Okay, no issues. You getting my point what I'm saying? It can't be accessed outside the block. It can be accessed within the block, okay,
but it is not global. You can't access it outside the block. समझ आ रहा है बेटा? तो ये होता है आपका कि जो वैर है आपका वो ब्लॉक लेवल भी है और ग्लोबल भी है, यानी कि अगर आपका ये वैर होता ये अंदर से भी एक्सेस होगा और ये बाहर से भी एक्सेस होगा, ठीक है? ये अंदर से भी एक्सेस होगा, विद इन ब्लॉक भी और बाहर से भी, दोनों चले। और इसकी एग्जाम्पल अगर हम प्रॉपर देंगे तो हम फंक्शंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बंद ही कर लेता हूँ, हम एक फंक्शन बनाते हैं। व्हाट डू यू से? हमने एक वैर बनाया, वैर ए equals to true, for example. I'm saying where a is equal to true. Put terminator, because this is the programming language, put terminator on the back. Now I am saying I'm creating a function. A function is created using the function keyword. We create, मैं functions पढ़ाऊंगा अलग से आपको, लेकिन ये सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा C वगैरह, तो ये आपको सेम ही है। लेकिन यहाँ पे functions आप function keyword से create करते हो। Then you name the function, say I call it fun. Then you write the body of the function, we know it. And it is the block, the function has its own block. And I am saying here, if a equals to double equals to true, there is two things, one is double equal, one is single equal, and then is triple equal. What is the difference? Anybody tell me? There is, one is equal to, say, that means if I say a equals to 4, that means it will assign 4 into the a. अब 4 चलेगा, वो घुसेगा a के अंदर. But if I say a double equals to 4, or say for example b, some variable, so it is not putting b into a, rather it is comparing the two. It is seeing whether a और b बराबर है कि नहीं, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा, है ना? इसका आंसर क्या होगा कि जो यहाँ पे होगा राइट साइड वो लेफ्ट साइड में घुसेगा, असाइन होगा. सो इट इज असाइनमेंट, इट इज कंपैरिजन. ये तो पता ही होगा आप लोगों को, मैं फिर भी बता रहा हूँ. अगर लेकिन अगर ट्रिपल इक्वल टू है, अब ट्रिपल इक्वल टू भी होता है. ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है कि वो खाली ये नहीं दिखेगा कंटेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए में 4 था और बी में भी 4 है, लेकिन ये स्ट्रिंग है, बी स्ट्रिंग है, ए नंबर है. इफ यू सी दिस वन, ये कंटेंट देखेगा, ये दिखेगा ए में भी 4 है, बी में भी 4 है, ठीक है, ट्रू. लेकिन ट्रिपल इक्वल टू देखेगा डेटा टाइप भी, ये देखेगा कंटेंट भी है सेम, हाँ है. क्या डेटा टाइप सेम है? नहीं, डेटा टाइप सेम नहीं. इसका डेटा टाइप नंबर है, इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग. सो ये फॉल्स देगा. समझ में आ गई बात? ओके, होप यू आर गेटिंग थिंग्स. नाउ इट इज डबल इक्वल टू, जस्ट सी वेदर ए इज इक्वल टू ट्रू और नॉट. वो है, बिकॉज मैंने ट्रू रखा ना उसमें, इट्स अ बूलियन. इसका डेटा टाइप क्या होगा? बूलियन. इसमें ट्रू है, तो मैंने क्या कहा कि अगर ट्रू है तो आप एक काम करो बेटा, आप बी के अंदर एक वेरिएबल बी करो क्रिएट, उसमें आप डालो 90 88 फॉर एग्जाम्पल. मैंने इसमें 88 डाला. व्हाट डू यू से अबाउट इट? ठीक है ना? सो अगर ए ट्रू है तो बी में 88 है, और मैं इसको 88 को प्रिंट करूंगा. आई विल से कंसोल डॉट लॉग. ठीक है, इसमें मैं कहूंगा वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू, और कनकैटनेट इट विद द बी. कनकैटनेट में समझा तो दो फोन के से कि यू कैन कॉन्कैटनेट टू, है ना, साइड बाय साइड लगाना, एक ही स्ट्रिंग बनाना. कॉन्कैटनेशन हैपन्स इन स्ट्रिंग्स. तो ये तो आराम से चलेगा, क्योंकि हाँ ट्रू है तो बी जो है उसका आ जाएगा आराम से. फिलहाल ये आया ही नहीं. क्यों नहीं आया बताओ कोई मुझे, वाई ये नहीं आया? इसका आंसर तो आना चाहिए था ना. मैंने कहा देखो ए इज इक्वल ट्रू, ठीक है. IT वाले मुझे बताएंगे, फिजिक्स वाले तो मुझे नहीं पता. फंक्शन फन इफ ए इक्वल्स टू ट्रू, इसमें कोई एरर है नहीं, बिल्कुल कोई एरर नहीं है कि अगर ए ट्रू है, हाँ है, तो एक बी वेरिएबल करो खड़ा. आप लिख सकते हो वैर बी इज इक्वल 88 या बी इज इक्वल, इट डजंट मैटर, सेम. आप लिखोगे वैर बी इज इक्वल या बी इज इक्वल 88, इट इज वन एंड सेम. आप लिखो या मत लिखो, देयर इज अ वैर इन इट. ठीक है ना? जैसे फिजिक्स वालों को पता होगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे, अगर फिजिक्स की बात करेंगे 2 है, उसमें आप लिखो या मत लिखो इट इज रेज पावर 1. इसमें आप लिखो या मत लिखो इट इज मल्टीप्लाई बाय 1. आप लिखो या मत लिखो इट इज डिवाइड बाय 1. और ये हम नहीं लिखते हैं, लेकिन है कि नहीं है? ये है उधर बाय डिफॉल्ट. इट इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट. इसी तरीके से यहाँ पे आप लिखो या मत लिखो, वैर है बाय डिफॉल्ट. ठीक है, लेकिन ये आउटपुट नहीं दिखा रहा. क्यों नहीं दिखा रहा? फंक्शन कॉल नहीं किए. वेरी गुड अरसलान, क्योंकि फंक्शन को कॉल तो करो यार. फंक्शन को फंक्शन बनाया आपने, उसको कॉल तो करो. आई विल यूज एनीवेयर यू लाइक टू कॉल इट, कॉल इट. Now I am calling the function. Now when I call the function, the value of b is 88. It is accessing it. But I want to access it
this value of b, but I'm saying inside function, huh? I'm saying inside function. Now I don't want to do it here. I say command C and go out of this if block, and I will do it here, command V. Okay? Okay. Now what will happen? Tell me. इसको inside नहीं लिखना चाहिए, इसको inside, ये inside if block है ना? This is inside if block. If block. Spelling को क्या हो गया? I don't know what. This is outside if block, huh? और एक और हम करते हैं बाहर, बिल्कुल बाहर, फंक्शन के बाद हम लिखेंगे कमांड वी. दिस इज आउटसाइड फंक्शन. तो बताओ क्या क्या चलेगा. गिव इट ए गो. सी तीनों चल गए. आपका ए जो है इट इज एक्सेसिबल. ये जो बी था ना, बी में करा था ना, बी जो आपका बी आपने बनाया इस इफ ब्लॉक के अंदर बनाया, तो वहां तो एक्सेस होगा ही होगा. लेकिन मैं बाहर गया, इस इफ के ब्लॉक के बाहर गया, इस इफ ब्लॉक के बाहर गया, और बी इज अवेलेबल देयर ऑल्सो. मैं अब इस फंक्शन के भी बाहर गया, इट इज अवेलेबल देयर ऑल्सो. वाई? बिकॉज आई टोल्ड यू दैट where इज ए ग्लोबल वेरिएबल एज वेल एज ब्लॉक वेरिएबल. लेकिन अगर आपने ये लेट किया होता, इसको अगर आपने क्या किया होता, लेट, तो क्या चलेगा? अरसलान यू कैन टेल मी. हाँ जी, स्टेटमेंट में चलेगा और फिर फंक्शन के बाहर का चलेगा. फन फंक्शन के बाद जो है उस पे चलेगा क्या? फिर तो आपको समझ ही नहीं आया ब्लॉक और ये क्या होता है. सर मतलब एक बार खाली प्रिंट स्टेटमेंट होगा और उसके बाद एरर आएगा. एग्जैक्टली क्योंकि जो लेट है आपका ये ब्लॉक वेरिएबल है. ब्लॉक वेरिएबल का मतलब होता है कि इस, जब मैंने कोई ब्लॉक बनाया ना, देखो जब मैं कहीं भी कोई ब्लॉक बनाऊंगा, ब्लॉक का मतलब होता है अपने अपने ब्रेसेस. अगर मैंने यहाँ कोई वेरिएबल बनाया, लेट से लेट ए इक्वल्स टू 89 फॉर एग्जांपल, इस ए का जन्म इस ब्लॉक में होगा. जो ही इसकी जो क्लोजिंग ब्रेस जहाँ मिलेगी ना, इट विल बी किल्ड, इट विल बी नो मोर. So that means if you try to access this outside this block, it is not present at all. It's killed, damn killed. So that means कि same logic इसको लगाओ कि ये जो B बना वो किधर बना, वो if block के अंदर बना. ठीक है ना? जो ही if block खत्म होगी यहाँ पे, what will happen to the B? What will happen to the B? It will be Umar Sheikh. What will happen to the B after this if finishes? It will be killed. It will be no more. Now when it is killed, when it's no more, and you are trying to access it here, will it be available? No. तो इधर की तो बात ही नहीं है, फंक्शन के बाहर तो बात ही नहीं है, फंक्शन के अंदर भी नहीं चल रहा. वैल्यू ऑफ बी इनसाइड इफ ब्लॉक चल रहा है, उसके बाद इसका बैंड बज रहा है. क्यों? क्योंकि जो आपका लेट है इट इज ए ब्लॉक वेरिएबल. लेकिन जो आपका कौन है, वेर है, इट इज ए ब्लॉक एज वेल एज, हाँ जी, इट इज ब्लॉक एज वेल एज ग्लोबल. अरे यार तुम लोग बोलते ही नहीं हो क्या? डेड बॉडीज हो क्या? वे यार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो आप लोग. यू हैव टू बी एटलीस्ट छोटी छोटी बातें तो अब आपको आनी चाहिए ना. और मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि आपका पीछे वाला बता रहा हूँ. कुछ जो मैंने पढ़ा है मैं वही पूछ रहा हूँ. हाँ जी, समझ आ रहा है बेटा? अरसलान यू गेटिंग क्लियरली? यस सर. अरसलान तो जनीश में बासा थोड़ा सीरियस पा, बाकी जी खबर क्या दिली, बाकी क्या हिसाब. एनीवेज नाउ लुक हियर, एक और चीज़ बताऊंगा बिफोर आई थिंक दिस टाइम इज ओवर. वी विल फिनिश इट अप, वी विल कंटिन्यू क्लास टुमारो. ओके ओके, आई थिंक वी आर डन विद दिस थिंग. सर अटेंडेंस की लेनी है ना?